حویلی کے اس بڑے اور پرانے کمرے میں حبس اور گھٹن کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس ربیہ کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں میں بری طرح سے ٹکرا رہا تھا۔ چچی دروازے کے پاس کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ربیہ کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ جلدی کرو، سیٹ باہر انتظار کر رہا ہے اور میرے پاس فضول وقت بھی نہیں ہے۔ فاریہ کمرے کے دوسرے کونے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی آیا تھی۔ وہ بار بار اپنے فون کی اسکرین دیکھتی اور پھر سے سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیتی۔ ربیہ نے ایک نظر اپنی چھوٹی بہن پر ڈالی اور پھر بے بسی سے اپنی نظریں فرش پر جھکا لی۔ اور یہ سب ذلت صرف اور صرف فاریہ کو مستقبل اور اس کی زندگی بچانے کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ اتنا بڑا سودا کس شرط پر کیا ہے۔ اپنی محبت سے دستبردار ہونا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ نہ صرف اپنی محبت سے دستبردار ہوئی تھی بلکہ اپنی زندگی کو ایسے جہنم میں جلانے کا فیصلہ کر لیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ یہ سودا اسی نے تو کیا تھا، اب پھر دل اتنا پرملال کیوں تھا؟ یہ وہ پہلی قربانی نہیں تھی جو وہ دے رہی تھی۔ قربانیوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب ان دونوں بہنوں کے سروں پر باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا۔ ماضی کی تلک یادوں نے ربیہ کے دماغ میں ایک طوفان برپا کیا۔ والدین کے اچانک انتقال کے بعد حویلی کی ساری رونقیں چھن گئی۔ چچا نے جلد سازی میں ساری جائیداد پر قبضہ کیا۔ چچی نے بھی اپنا اصلی اور بھیانک رنگ دکھایا۔ انہوں نے گھر کے تمام پرانے ملازمین کو کام سے نکالا اور سارا بوجھ ان دونوں یتیم بہنوں پر ڈال دیا۔ ربیہ نے بدترین حالات میں بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ وہ چچی کے بے تحاشا ظلم سہ کر بھی کوئی عام اور صرف گھریلو لڑکی نہیں بنی۔ اس نے ہمت کی اور شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ لیا۔ فاریہ نے بھی اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر محنت کی۔ ربیہ راتوں کو جا کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرتی، گھر کے سارے کام بھی وہ خود کرتی۔ کالج کے دنوں میں ربیہ نے ایک نئی اور روشن دنیا دیکھی۔ وہاں اس کی ملاقات نوشیروان سے ہوئی۔ نوشیروان نے پہلی بار ربیہ کو کالج کی لائبریری میں دیکھا تھا۔ ربیہ کی سادگی اور ذہانت نے نوشیروان کو بے حد متاثر کیا۔ ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا اور جلد ہی وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ نوشیروان نے ہر مشکل میں ربیہ کا ساتھ دیا۔ اس نے پڑھائی اور کالج کے پروجیکٹس میں بھی ربیہ کو بہت مدد کی۔ ربیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی پر اتنا بھروسہ کیا تھا۔ ان کی یہ دوستی رفتہ رفتہ ایک گہری محبت میں بدل گئی۔ نوشیروان نے ایک دن کالج کے کیفیٹیریا میں ربیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے ربیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک خوبصورت مستقبل کا وعدہ کیا۔ میں بہت جلد ایک کامیاب انسان بنوں گا، نوشیروان نے پرعزم لہجے میں ربیہ سے کہا، اور پھر پورے وقار کے ساتھ میں تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ ربیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے نوشیروان کے باتوں اور اس کی سچی محبت پر مکمل یقین کیا۔ کالج کا وقت بہت تیزی سے گزرا۔ ربیہ نے اچھے نمبروں سے اپنے امتحانات پاس کیے۔ فاریہ نے بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ دونوں بہنوں نے آگے پڑھنے اور اپنے خواب پورے کرنے کے ارادے کیے، لیکن ان کی خوشیوں کو چچی کی لالچ نے نگل لیا۔ کالج ختم ہونے کے فوراً بعد چچی نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میرے پاس تم دونوں کی فیسوں کے لیے کوئی خزانہ نہیں چھپا۔ چچی نے انتہائی سرد اور ظالمانہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تم دونوں میں سے اب صرف ایک ہی آگے پڑھائی جاری رکھے گا۔ چچی کے ظالمانہ فیصلے نے ربیہ اور فاریہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ فاریہ نے غصے سے چچی کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارے باپ کا پیسہ ہے جس پر آپ قبضہ کر کے بیٹھے۔ فاریہ نے اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ میں آگے پڑھوں گی اور ربیہ بھی یونیورسٹی جائے گی۔ فاریہ نے نڈر انداز میں چچی کو کھڑا جواب دیا۔ چچی نے آگے بڑھ کر فاریہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ربیہ نے تیزی سے فاریہ کو اپنے پیچھے کھینچا۔ فاریہ نے بہت واویلا مچایا اور خوب ہنگامہ کیا۔ اس نے صاف انکار کیا کہ وہ اپنی بہن کا حق کسی صورت نہیں مارے گی، لیکن ربیہ نے اس پر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی محبت، اپنی پڑھائی دونوں کو فاریہ کی خاطر پس پش ڈالا۔ اسے فاریہ کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو فاریہ۔ ربیہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے ڈانٹا۔ تم جانتی ہو چچی کو بس ہماری پڑھائی چھڑوانے کا ایک بہانہ چاہیے۔ ربیہ نے فاریہ کے آنسو صاف کیے اور اسے پیار سے سمجھایا۔ میں اپنی پڑھائی کر پر مکمل کر لوں گی اگر تم ایک قابل ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا یہ خواب ہر حال میں پورا کرو۔ ربیہ نے انتہائی جذباتی انداز میں اپنی بہن کو منایا۔ فاریہ نے پھر بھی ضد کی اور انکار کیا۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گی تو میں بھی آگے نہیں پڑھوں گی۔ فاریہ نے روتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔
रबिया ने उसे सख्ती से रोका और उसे अपनी कसम दी, तुम मेरे लिए अपना ख्वाब पूरा करोगी, ओके? अगर नहीं मानी तो चची हम दोनों को घर पर बिठा लेंगी। समझने की कोशिश करो, तो मेरी वाहिद उम्मीद हो फारिया। रबिया ने उसे मजबूर किया कि वो मेडिकल की तैयारी करे। फारिया ने रोते अपनी बहन की बात मान ली, लेकिन वो नहीं जानती थी कि चची के जाल और हक तलफियों के सिलसिले अभी खत्म नहीं हुए थे। जब फारिया का मेडिकल में एडमिशन होने का वक्त आया तो चची ने फिर से ववेला मचा दिया। उससे रबिया को कमरे में बुलाकर एक ऐसी कड़ी सजा रखी कि रबिया को अपनी मोहब्बत और अपनी खुशियों से हमेशा के लिए दस्तबरदार होना पड़ा। अगर तुमने सेठ जहांगीर से निकाह से इनकार किया तो समझो फारिया का ख्वाब पूरा नहीं होगा। सोच, वो इतना अमीर है, तुम्हें रानी की तरह बना कर रखेगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो और फारिया का भी मुस्तकबिल बेहतर होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। और रबिया को लगा जैसे उसे सरे बाजार सूली पर लटका दिया गया हो। फारिया ने जब सुना तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, आज इस चच्ची को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। जरा ये समझती क्या है, इस अपाहिज सेठ से करेगी रिश्ता? और तुम्हारी मोहब्बत का क्या? तुम इतनी खुदगर्ज और सफा कैसे हो गई? फारिया को यकीन नहीं आ रहा था, मगर रबिया ने फैसला कर लिया था। मैंने शेरवा को छोड़ चुकी हूँ, इसका जिक्र अब नहीं करना। और ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। क्या मेरा हक नहीं है खुशियों पर? मैं अपने ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। जहांगीर के पास बहुत पैसा है। खबरदार फारिया, जो तुम मेरे रास्ते में आई। उसने फारिया को लाजवाब किया। वो शर्शर रह गई। वो जानती थी कि रबिया को वो नहीं रोक सकती। सिर्फ एक चीज है जो उसे जहन्नुम से निकाल सकती है। वो खामोश हो गई और रबिया ने सुकून का सांस लिया। मगर आज निकाह का दिन था। रबिया का दिल ऐसा था कि अभी बाहर आ जाएगा। उसने ये क्या कर डाला था? मगर पछतावे का कोई फायदा ना था। ये जहर का प्याला तो उसे पीना ही था। अब वापसी मुमकिन नहीं थी। चची ने आगे बढ़कर रबिया का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे झटका देकर खड़ा किया। ड्रामे बंद करो, सीधी तरह मेरे साथ बाहर चलो। रबिया के कदम मनो भारी हो रहे थे, लेकिन वो खामोशी से चची के पीछे चल रही थी। बाहर दलान में गहमा गहमी अरोज पर थी। सेठ जहांगीर अपनी व्हील चेयर पर बैठा इंतहाई लालची और हवस भरी नजरों से उसे देख रहा था। एक आंखों ने अपना कागजात दुरुस्त की और ऐनक को नाक पर टिकाया। चची ने रबिया को जबरदस्ती लाकर सोफे पर बिठा दिया। फारिया भी तेजी से चलती उसके पास आकर खड़ी हो गई। इसे जैसे किसी मौत का इंतजार था। रबिया का दिल चाहा कि अभी जमीन फटे वो उसमें समा जाए, लेकिन हकीकत इंतहाई तलख थी। काजी ने अपना गला खनकारा और खुतबा निकाह शुरू किया। वहां मौजूद सभी लोग खामोशी से सुनते रहे। रबिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने शिद्दत तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर दी। अचानक बाहर से गाड़ियों के सायरन की तेज और दिल दहला देने वाली आवाजें आई। सब लोग चौंक गए और खड़े हो गए। फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। भारी बूटों की आवाज ने लाउंज का सारा सुकून तोड़ दिया। दर्जन भर पुलिस वाले अपने हथियारों के साथ तेजी से अंदर दाखिल। उन्होंने पूरे घर को अपने घेरे में ले लिया। सेठ जहांगीर घबराकर अपनी व्हील चेयर पर सीधा हुआ। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चची के होश उड़ गए और वो पीछे हट गई। इन सब पुलिस वालों को पीछे एक तवील कामत और रोबदार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। वो एसपी नौशेरवां था। उसकी कड़कदार यूनिफॉर्म और चेहरे की सख्त और पाटदार तमखनत देखकर सबकी सांस हलक में अटक गई। रबिया ने सायरन की आवाज पर घबराकर आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। नौशेरवां की तेज और गजबनाक नजरें सीधी रबिया के जर्द चेहरे पर गई थी। रबिया के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई थी। शर्मिंदगी, दुख, हैरत उसे मुकम्मल तौर पर बुत बना दिया था। वो तो अपनी मजबूरी थी, लेकिन नौशेरवा का यूं अचानक उसके निकाह में आना उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। नौशेरवा ने आगे बढ़कर इंतहाई सर्द और काटदार लहजे में काजी को रखने का इशारा किया। यह निकाह नहीं हो सकता। उसकी गोजदार और पुररोब आवाज पूरी लाउंज में गूंजी। चची समीना ने हिम्मत इकट्ठी करके आगे बढ़ने की कोशिश की। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस हमारे घर बगैर इजाजत कैसे घुस आई? नौशेरवा ने समीना बेगम की तरफ एक हकारत भरी और गजबनाक नजर डाली और फिर अपना रुख रबिया की तरफ मोड़ लिया। मैं यहाँ किसी खुशी या शादी में शरीक होने नहीं आया, बल्कि एक मुजरिम को गिरफ्तार करने आया हूँ। ये लड़की एक संगीन जुर्म में पुलिस को मतलूब है। ये सुनते ही रबिया के पैरों तले से जमीन निकल गई और इसका सांस रुकने लगा। सेठ और बाकी मेहमान भी खौफजदा होकर घुसर पुसर शुरू कर रहे थे। फारिया ने हैरानी से नौशेरवा को देखा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश रही। नौशेरवा ने अपने एक मातहत ऑफिसर को इशारा किया, इस लड़की को फौरन गाड़ी में बैठा। रबिया हवास पाख्ता होकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई।
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ نوشیروان نے اس کی بات کو اکثر نظر انداز کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ربیہ کی کلائی پکڑی اور اسے سختی سے دروازے کی طرف دھکیلا۔ تمہارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، جن کی تفصیل تمہیں تھانے میں ہی بتائی جائے گی۔ لال عروسی جوڑے میں ملبوس ربیہ کو جیسے پولیس کی گاڑی کی طرف لے جایا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں شدید غصہ ابل رہا تھا۔ پورے محلے اور تمام مہمانوں کے سامنے نوشیروان نے اسے ایک ایسے جرم کا سزا کا سرعام ذلیل کر دیا تھا۔ نوشیروان نے اسے پولیس وین میں ڈالنے کی بجائے اپنی ذاتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے حویلی سے دور ہونے لگی۔ گاڑی کے اندر ایک جان لیوا اور گھٹن زدہ وحشت چھائی ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ سیٹھ جہانگیر اور اس کے گھر والے غضبناک نظروں سے سمینہ کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ایک اشتہاری لڑکی کو ہم نے گلے باندھ دیا، ہمارے پیسے لوٹے، ہمارا مال بھی، ہمیں واپس کرو ابھی کے ابھی۔ سمینہ بیگم حواس باختہ ہو چکی تھی۔ سارے پیسے تو اس نے اڑا دیے تھے، اب کہاں سے لاتی؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا اور ربیہ کو کس جرم کے پاداش میں پکڑا گیا۔ جب حواس باختہ زارا بحال ہوئی تھی وہ لجاجت سے بولی، جہانگیر بیٹے مجھے ذرا مہلت دو، مجھے تو خود علم نہ تھا کہ وہ لڑکی اس قدر باغی اور نہ ہمکار ہے۔ دیکھنے میں تو بڑی معصوم لگتی ہے، یتیم سمجھ کر پالا یہی سلا دیا۔ یا خدا میں کہاں جاؤں؟ ان کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے۔ فاریہ البتہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نوشیروان کبھی بھی ربیہ کو اب اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بھائی میری قسمت خراب، کل موہی مر کیوں نہیں کی؟ اتنی بدنامی میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ چچی سمینہ کے مگرمچھ کے آنسو شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جہانگیر اس کے حلق میں سے بھی اپنا مال نکال لینے کو تیار تھا۔ دیکھ سمینہ، میری بات کھول کر سن لے، مجھے ابھی کے ابھی میرے پیسے چاہیے، اگر نہیں تو میں یہاں پر نکاح کر کے جاؤں گا، چاہے بڑی کے ساتھ یا چھوٹی کے ساتھ۔ اسے فاریہ کی جانب دیکھ کر جیسے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ جہاں چچی کی جان میں جانا ہی وہیں فاریہ کا منہ کھل گیا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی میری طرف بڑھا ہے تو ایک خنجر دیکھ رہے ہو نا؟ اسے جھٹ پڑ سے ایک چاقو نکالا اور ان پر تان کر کھڑی ہو گئی۔ میں ربیہ نہیں ہوں، میں فاریہ ہوں، اور یہ بات چچی آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اس لنگڑے کو یہاں سے چلتا کریں ورنہ میں واقعی پولیس بلا لوں گی اور اس دفعہ گرفتار آپ لوگ ہوں گے۔ اس نے اس قدر درجتی سے کہا کہ سب لوگ اپنی جگہ پر سہم گئے۔ چچی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ربیہ کی طرح فاریہ کو دبانا ناممکن ہے۔ نوشیروان پرسکون سے گاڑی چلا رہا تھا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ربیہ غصے اور ضبط کی زیادتی سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ نوشیروان کا چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا اور اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی۔ ربیہ سے مزید یہ خاموشی اور ذلت برداشت نہ ہوئی۔ تم نے یہ سب کیا ہے نا؟ تم نے مجھے سب کے سامنے مجرم بنا کر رسوا کر دیا، میرا تماشا بنا دیا، مجھے سیدھا جیل لے جاؤ۔ یہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے؟ نوشیروان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ یوں سمجھو تمہارے جرائم کی آج بہت کڑی سزا ملنے والی تمہیں۔ تم نے اسی لیے مجھ سے ہر تعلق ختم کیا نا، کہ اس معذور سیٹھ کے سیٹ سجا لو۔ میری محبت کیا مذاق تھی، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا اپنا لیا۔ وہ قرب سے بولا تو ربیہ لب بھیج کر آ گئی۔ اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا، مگر پریشانی حد سے سوا تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت شاندار اور اونچی اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں آ کر رکی۔ نوشیروان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ربیہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ربیہ نے انتہائی حیرت اور غصے سے اس شاندار عمارت کو دیکھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لایا ہو؟ تم نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پھر مجھے تھانے لے کر جاؤ، وہاں سزا دو مجھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ نوشیروان نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے لفٹ کی جانب لے گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور نوشیروان نے اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ ربیہ نے لڑکھڑا کر خود کو سنبھالا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم بالکل پاگل ہو گئے ہو نوشیروان، تم نے مجھے ساری زندگی کا مجھے تماشا بنا دیا۔ میرا جرم اتنا بڑا نہیں جس کی تم مجھے یہ سزا دے رہے ہو۔ نوشیروان انتہائی پرسکون باوقار انداز میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی جس نے ربیہ کو حیران کر دیا۔ میں تمہیں اس ذلت سے بچا کر لایا ہوں جو وہ عورت تمہارے مقدر میں لکھ چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا مجھے کچھ علم نہیں ہوگا؟ یا تمہیں لگا کہ تم میرے میسیجز کا جواب نہیں دو گی، اپنی محبت سے مکر جاؤ گی تو میں خاموش بیٹھے رہوں گا؟ میں نوشیروان ہوں، اپنا حق ڈھنکے کی چوٹ پر لینا جانتا ہوں۔ نوشیروان کا لہجہ انتہائی دھیما لیکن مضبوط تھا۔
रबिया ने बेयकीनी से उसे देखा। तुमने मुझे सबके सामने रुस्वा किया, क्या चाहते हो? उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। तो शेरवा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए वो अल्फाज कहे जिन्होंने रबिया के अंदर खुलबुली सी मचा दी। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा रबिया। अगर तुम की अपनी उस अपाहिज सेठ की बीवी बनना चाहती हो तो चलो, मैं खुद तुम्हें वहां छोड़कर आ रहा। मगर याद रखना, जिंदगी तुम्हें एक मौका देगी अपनी मोहब्बत को चुनने का, और ये मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता। रबिया के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। वो जानती थी कि वो इस सेठ से निकाह क्यों कर रही थी। उसने अपने बहन के मुस्तकबिल की खातिर ये सब बर्दाश्त किया था। रबिया ने अपने आंसू रोके और नौशेरवा की तरफ देखा, जो एक सच्चे और मजबूत मर्द की तरह उसकी मर्जी का इख्तियार दे रहा था। मेरी एक शर्त है। रबिया की आवाज अब कदरे मजबूत थी। नौशेरवा के चेहरे पर एक नरम और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट उभरी। मैं तुम्हारी ये शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम बस हुक्म करो। नौशेरवा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मेरी बहन फारिया का मुस्तकबिल, मुझे उसकी गारंटी चाहिए। चाची उसे कभी जीने नहीं देगी। रबिया ने अपनी सबसे बड़ी परेशानी बयान की। नौशेरवा ये सुनते ही सब कुछ समझ गया। उसके जहन में वो सारी कड़ियां मिल गई जो अब तक उलझी हुई थी। उसे समझ आ गया कि रबिया ने उसे बेरुखी क्यों बरती थी और आज वो उसे सेठ से निकाह क्यों कर रही थी। शेरवा के दिल में रबिया के लिए मोहब्बत और एहतराम का एक नया समंदर बेदार हुआ। नौशेरवा ने आगे बढ़कर रबिया का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। फारिया, आज से मेरी बहन है रबिया। तुमने शायद नहीं जानती कि आज फारिया ने ही मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया है। रबिया ने ना समझी से उसे देखा। फारिया ने मुझे फोन करके तुम्हारे ये जबरदस्ती निकाह की इत्तला दी, और आज वो मुझे ना बताती तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। ये सुनकर रबिया के आंसू बह निकले। जिस बहन के लिए वो अपनी जान और जिंदगी कुर्बान करने जा रही थी, उस बहन ने आज उसकी जिंदगी बचा ली। रबिया को महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। नौशेरवा ने इंतहाई नरमी से उसके आंसू साफ किए। मैं तुमसे वादा करता हूँ फारिया कि तालीम और उसके मुस्तकबिल की पूरी जिम्मेदारी आज से मेरी है। कोई से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नौशेरवा के इस अल्फाज ने रबिया के अंदर की सारी बेचैनी खत्म कर दी। उसने एक पुरसुकून सांस ली और नौशेरवा को देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए इज्जत और बेपनाह मोहब्बत थी। वो वाकई एक मजबूत बावकार मर्द था, जो उसे हर दुख और तकलीफ से बचाने की ताकत रखता था। अब बोलो, क्या निकाह करोगे मुझसे? वो नरमी और मोहब्बत से बोला। नहीं, जब तक फारिया को देख तो नहीं लेती, ये निकाह नहीं करूंगी। रबिया के लहजे में मजबूती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी उस यकीन की यही शर्त है तो मैं अभी से ले आता हूँ, मगर तुम वादा करो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं आ नहीं जाता। वो सेठ काफी क्रिमिनल टाइप का बंदा है, मुझे उसे भी पकड़ना है, उसके खिलाफ ठोस सबूत ढूंढना है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम्हारी चची इस कदर मतलब प्रस्त कैसे हो सकती है। और तुम रबिया, तुम भी अपने आप को इस जाहिल क्रिमिनल के हवाले कर रही थी। अगर मैं वक्त पर ना पहुंच पाता तो? और शदीद बरहम लग रहा था। रबिया की आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसकी मजबूरी की दास्तान सुना रहे थे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी गया रबिया आया, आज ही मैं तुमसे निकाह करूंगा, मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो बेचैनी से बोला तो रबिया ने मुस्कुराकर जैसे उसे तसल्ली थी। नौशेरवा के जाने के बाद उसकी परेशानी बढ़ गई। अगर फारिया को कुछ नुकसान पहुंच गया तो खुद को कैसे माफ करेगी? उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अचानक उसका मोबाइल थरथराया, जो कि उसके क्लच में था। उसे जल्दी से निकाला तो फारिया की कॉल थी। रबिया ने छूटते ही कॉल रिसीव की। फारिया, मेरी जान, फिक्र मत करो, नौशेरवा बस पहुंचने वाला है, वो तुम्हें लेकर आएगा। बस फिर हम दोनों वहां कभी नहीं जाएंगे। वो अपनी कहे जा रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसे मंजमद कर दिया। वाह, बड़ी शानदार प्लानिंग बनाई है तुम दोनों बहनों ने, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। एक खुरदरी और जहर में बुझी आवाज फारिया की नहीं बल्कि सेठ जहांगीर की थी। ये आवाज सुनते ही रबिया के हाथ से जैसे मोबाइल छूटने लगा। उसके पूरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसके दिल की धड़कन एकदम से जैसे थम गई और फिर इतनी तेजी से धड़कने लगी कि पसलियां तोड़ने का गुमान होने लगा। उसकी आंखों में वहशत और खौफ का साया उतर आया। जहांगीर, उसके कांपते खुश्क लबों से बामुश्किल ये लफ्ज अदा हुआ। हाँ, तुम्हारा वही होने वाला शौहर जिसे तुम बड़ी महफिल में सरेआम जलील करके अपने उस पुलिस वाले के आशिक के साथ भाग गई। तुमने क्या सोचा था रबिया, कि सेठ जहांगीर इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा और खामोश बैठ जाएगा?
तुम मेरी कैद से तो निकल गई, अपने उस एसपी के परों के साए में छुप गई, मगर अपनी इस लाडली बहन का क्या करोगी, जिसकी खातिर तुमने अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जहांगीर की आवाज में छुपी दरिंदगी, तंज और सफाकी ने रबिया के असाब पर मुकम्मल तौर पर से शल कर दिया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। मेरी फारिया कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? जहांगीर, खुदा के लिए मेरी बहन को कुछ मत कहना। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारा सौदा मेरे साथ हुआ था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मेरी बीच में मत आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो। रबिया पागलों की तरह फोन पर चलाई। उसके आंसू बेतहाशा बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर सख्ती से मसल दिया हो। दुश्मनी अब शुरू हुई है मेरी जान। तुमने मेरे मुंह पर जो खारत मली है ना, उसका हिसाब तो मैं लूंगा, और वो हिसाब अब तुम्हारी इस जुबान दराज बहन की जान लेकर लूंगा। इसने मेरे चेहरे पर खंजर तानने की जुर्रत की है। अब मैं इसके जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम गिनते गिनते पागल हो जाओगे। जहांगीर ने खबीस और खौफनाक कहका लगाया, जो रबिया के दिमाग की रगें फाड़ने लगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस मेरी फारियों को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रबिया की आवाज में अब सिर्फ गिड़गिड़ाहट और इल्तिजा थी। अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये लाडली बहन जिंदा रहे और सलामत रहे और सांस लेती रहे, तो बगैर किसी को बताए चुपचाप शहर के बाहर वाले पुराने ब्लैक विड फार्म हाउस में पहुंच जाओ। अकेली हो ना? और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो रबिया। अगर तुमने अपने उस एसपी नुशीरवा को एक लफ्ज भी बताने की कोशिश की ना, या पुलिस को दरमियान में लाने की कोशिश भी की, कसम खाकर कहता हूँ कि फारिया की लाश के टुकड़े पूरे बोरी में भरकर हमारे शानदार अपार्टमेंट के दरवाजे पर भिजवा दूंगा। पुलिस तुम्हारे यार की होगी, लेकिन मुजरिमों की इस दुनिया का ये बेताज बादशाह हूं मैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है। वक्त शुरू हो चुका है। इससे पहले कि रबिया कुछ और कहती, कॉल कर चुकी थी। फोन से आती टू टू की आवाज रबिया के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसा रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती। उसका दिमाग माउफ हो चुका था। नौशेरवा ने से किया गया वादा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अब उसके जहन में गूंज रहा था। मगर दूसरी तरफ फारिया की जिंदगी थी। वो फारिया जो उसकी जान थी, जिसके मुस्तकबिल के लिए उसने नौशेरवा जैसे सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया था। वो फारिया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। मुझे माफ कर देना नौशेरवा, मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर फारिया को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रबिया ने रोते हुए खुद कलामी की ओर तेजी से उठी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, आंसू साफ किया और अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर पागलों की तरह बाहर भागी। लिफ्ट का इंतजार करना भी उसे मुहाल लग रहा था। वो सीढ़ियों से ही दीवानावार नीचे उतरी। सड़क पर आकर उसने एक टैक्सी रोकी और उसे फार्म हाउस का पता दिया। सारा रास्ता उसका दिल हलक में उठता रहा। वो मुसलसल दुआएं मांग रही थी। शेरवा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि जब उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा। क्या वो समझेगा कि रबिया ने उसे फिर धोखा दिया? लेकिन उस वक्त कुछ भी अहम नहीं था सिवाय फारिया के। शहर की रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी और वो वीरानी भरती जा रही थी। गोपन अंधेरे में डूबा ब्लैक वुड हाँ फार्म हाउस दूर से ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। टैक्सी वाले ने उसे कुछ फासले पर ही उतार दिया। रबिया ने कांपते कदमों के साथ फार्म हाउस के बड़े से आईनी गेट की तरफ कदम बढ़ाया। गेट आधा खुला था। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ मौत का सकूत तारी था। पुरानी और बोसीदा इमारत के कमरे में मदम सी रोशनी आ रही थी। रबिया के कदम मनो भारी हो चुके थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी खाई में गिरने वाली है। वो हाँफती कांपती उस कमरे के दरवाजे की तरफ पहुंची और उसे धक्का देकर अंदर दाखिल हुई। कमरे का मंजर देखते ही उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। कमरे के बीचों बीच सेठ जहांगीर अपनी व्हील चेयर पर बैठा एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था, और उसके बिल्कुल पीछे चची समीना बेगम खड़ी थी, जिनके चेहरे पर एक फातिहाना और मक्काराना चमक थी। कमरे में फारिया कहीं नहीं थी। रबिया ने दीवाना वार चारों तरफ देखा। उसकी नजरें कमरे के हर कोने को कंगाल रही थी। फारिया, फारिया कहाँ है? तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया? जहांगीर, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास है। रबिया की आवाज में शदीद खौफ और घबराहट थी। वो चची की तरफ पलटी। चची, आप यहाँ? आपने ये सब क्यों किया? फारिया कहाँ है? वो तो आपके साथ आपके बेटों की तरह थी ना। खुदा के लिए मुझे मेरी बहन मिला दो।
चची समीना ने एक दो जोरदार कहका लगाया जो इस वीरान कमरे में देर तक गूंजा। उनकी आंखों में लालच और नफरत की आग भड़क गई थी। बेटियों जैसी? मेरी जूतियां बिना समझे तुम दोनों चुड़ैलों को अपनी बेटियां? तुम दोनों ने मेरे सीने पर मूंग धरने के लिए इस मनहूस घर में पैदा हुई थी। फारिया को हमने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से अपने घर में है। चची के अल्फाज किसी बम की तरह रबिया के दिमाग पर गिरे। शशर रह गई। क्या? घर पर? तो फिर ये सब, ये फोन? रबिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, बेवकूफ लड़की, वो घर पर है। चची ने तंजी अंदाज में चबाते हुए कहा। जब उस एसपी ने हमारी सारी बाजी उलट दी और जहांगीर के पैसे डूबने लगे तो मुझे मालूम हुआ कि अब फारिया ही वो वाहिद मारा है जिसके जरिए तुम खींची चली आओगी। फारिया तो इतनी बेवकूफ है कि जब वो तुम पर चिल्लाई और उसने खंजर निकाला, उस हंगामे में उसका फोन उसकी पर्स से गिरा तो मैंने उठा लिया। हमें तो सिर्फ उसके फोन की जरूरत थी ताकि तुझे बुलाया जा सके। चची के चेहरे की मक्कारियां खुलकर सामने आ रही थी। तुम्हें क्या लगा रबिया बीबी? जहांगीर ने अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाई। उसकी आंखों में दरिंदगी नाच रही थी कि तुम एक इश्तहारी मुजरिम का नाटक करके मेरी महफिल से भाग जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुमने कुछ चोट पहुंचाई है। मैंने समीना से कहा था कि मुझे हर हाल में तुम चाहिए, वरना मैं उसके घर की ईंट से ईंट बजाऊंगा। और देखो, ये लालची औरत कितनी आसानी से तुम्हें मौत के मुंह से खींच लाए। तुमने अपने उस आशिक के लिए मुझे छोड़ा था ना? अब कहाँ है वो? रबिया को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। वो बुरी तरह एक जाल में फंस चुकी थी। उसने अपनी सच्ची मोहब्बत नौशेरवा के मान को तोड़ा था और बदले में उसे धोखा मिला था। उसे फारिया के लिए कोई खतरा नहीं था। ये सब महज उसे नौशेरवा के हिसार से बाहर निकालने के लिए कानूनी साजिश थी। उसके अपने ही खून, उसकी अपनी चची ने चंद रखों के अवस उसका सौदा कर दिया था। आप इंसान नहीं शैतान है चाची। आपने पैसों के लालच में अपनी भतीजी की इज्जत और जान का सौदा कर दिया। आपको खुदा का खौफ नहीं आया? रबिया दहाड़े मार कर रो पड़ी। उसका दिल शिद्दत गम से फटने लगा था। बकवास बंद करो अपनी। चची ने आगे बढ़कर रबिया के बालों को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ा और उसे एक झटका दिया। रबिया दर्द से करा उठी। तुम जैसी मनूस लड़कियों का यही इंजाम होना चाहिए। बड़ा गरूर था ना तुझे अपनी उस पुलिस वाले आशिक पर। बड़ा उड़ा रही थी उसका, तुम्हारी बहन उसके नाम पर। अब बुलाओ उसे, अब पुकारो अपनी उस एसपी नौशेरवा को। देखते हैं वो कैसे आता है तुझे इस वीराने में बचाने। हाथ सीट के साथ तेरा निकाह भी होगा और तेरी वो अकड़ भी खाक में मिलेगी जो तूने मुझे सारी जिंदगी दिखाई है। रबिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। चारों तरफ अंधेरा था और उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नौशेरवा। उसने नौशेरवा से किया गया वादा तोड़ा था और अब उसके जाल में तन्हा, बेबस और लाचार खड़ी थी। जहांगीर की हवस भरी नजरें उसके वजूद को छलनी कर रही थी और चची के कह के उसकी रूह को नोच रहे थे। मौत और जिल्लत के सामने मुंह खोले उनके सामने खड़ी थी और अब उसका कोई मसीहा नहीं था। उसकी परेशानी और वहशत अब आखिरी बाप लिखा जा चुका था। नौशेरवा की गाड़ी तेजी से अपार्टमेंट की पार्किंग में रुकी। वो फारिया को साथ लेकर आया था ताकि रबिया की तसल्ली हो सके और उसका निकाह बिला तखीर अंजाम पा सके। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी की मिली जुली कैफियत थी। वो सोच रहा था कि आज बलाखिर वो अपनी मोहब्बत को पा लेगा। फारिया भी अपनी बहन की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। दोनों तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़े और अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचे। नौशेरवा ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। पूरा अपार्टमेंट खाली था। वहां एक अजीब सी खामोशी और वीरानी छाई थी। रबिया वहां नहीं थी। नौशेरा ने फौरन से बेकरारी से पूरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर रबिया का नामो निशान तक नहीं था। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फारिया की तरफ देखा जिसके पर परेशानी के साए गहरे हो चुके थे। फारिया, रबिया कहाँ है? उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो यहीं रहेगी। नौशेरवा की आवाज में शदीद घबराहट और गुस्सा था। फारिया ने जल्दी से अपना बैग खोला और अपना मोबाइल निकालने लगी ताकि रबिया को कॉल कर सके, मगर उसके हाथ बैग में खाली जगह पर पड़े। उसने सारा बैग उलट दिया मगर मोबाइल गायब था। अचानक फारिया के जहन में एक झमाका हुआ और उसे याद आया कि जब हवेली में हंगामा हुआ था और उसने चची और जहांगीर पर खंजर ताना था तो चची उसके बहुत करीब आ गई थी। फारिया का चेहरा सदमे और गुस्से से सुर्ख हो गया। वो सब समझ चुकी थी कि ये सब क्या हुआ। शेरवा भाई, मेरा फोन गायब है, मुझे यकीन है ये चची का काम है।
फारिया की आवाज कांप रही थी। वो औरत किसी भी हाल में रबिया का सौदा करने पर तुली हुई है। उसने मेरे फोन पर रबिया को कोई झूठा पैगाम भेजा होगा, वो कॉल की होगी, क्योंकि रबिया सिर्फ मेरी वजह से यहाँ से जा सकती है। मैं जानती हूँ रबिया मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। चची ने उसे मेरे नाम पर ब्लैकमेल किया है और रबिया उनके जाल में फंस गई है। ये सुनते ही नौशेरमा के दिमाग की रगें तन गई। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो जानता था कि रबिया ने वादा खिलाफी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि उसे मजबूर किया गया। नौशेरमा का सीना गजब और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके हाथ से खून रिसने लगा, मगर उसे इस दर्द का कोई एहसास नहीं था। आज वो उस चच्ची और उस अपाहिज सेठ को सबक सिखाने वाला था, जो वो नस्लों तक याद रखते। तो उसके जुर्म का सबूत भी आ गया था। उसने फौरन से अपना वायरलेस निकाला और हेडक्वार्टर कॉल मिलाई। मुझे पूरी फोर्स अलर्ट चाहिए। शहर के तमाम नाके बंद कर दो और साइबर टीम को लाइन पर लो। नौशेरमा की दहाड़ती हुई आवाज पूरे अपार्टमेंट को हिला कर रख गई थी। उसने साइबर टीम को फारिया के नंबर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म दिया। चची समीना बेगम इतनी अक्लमंद और शातिर नहीं थी कि मोबाइल फोन बंद करती है उसकी सिम निकाल कर फेंक देती। उनकी इसी बेवकूफ़ी ने नौशेरमा को एक बड़ी बढ़तरी दिला दी थी। चंद ही मिनटों में साइबर टीम ने रिपोर्ट दी कि मोबाइल के आखिरी सिग्नल शहर के बाहर ब्लैक वुड फार्म हाउस में आ रहा है। ये सुनते ही नौशेरमा के अंदर आंधी की तरह पलटा था। फारिया, तुम यहीं रुको, मैं रबिया को लेकर आता हूँ। उसने फारिया को सख्ती से हदायत की और बाहर की तरफ दौड़ा। फारिया रोते हुए उसे एहतियात की तलकीन कर रही थी, मगर नौशेरमा के कानों में अब कोई आवाज नहीं जा रही थी। वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी में बैठा, अब गाड़ी को इंतहाई खतरनाक रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने रबिया का मासूम और डरा हुआ चेहरा घूम रहा था। खुद को कोस रहा था कि उसने रबिया को अकेला क्यों छोड़ा। उसे मालूम था कि जहांगीर एक इंतहाई खतरनाक और मुजरिमाना जहनीत का इंसान है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपाहिज जरूर था, मगर क्रिमिनल माइंड का बंदा था। गाड़ी के टायर सड़क पर रगड़ खाकर चंगारियां उड़ा रहे थे। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां सायरन बजाती उसके पीछे दौड़ रही थी, मगर नौशेरमा सबसे आगे था। वो मौत की परवाह किए बगैर रबिया तक पहुंचना चाहता था। दूसरी तरफ ब्लैकवुड फार्म हाउस के उस खौफजदा और तरीक कमरे में रबिया की हालत गैर हो चुकी थी। उसे एक बारी कुर्सी के साथ मोटी और खुरदरी रस्सियों से बुरी तरह से बांध दिया गया था। रस्सियां उसकी नाजुक कलाइयों में धंस चुकी थी और वहां से खून रस रहा था। उसका रूसी जोड़ा मिट्टी और आंसू से लथपथ हो चुका था। चची समीना उसके सामने खड़ी इंतहाई गलीज मुस्कुराहट के साथ उसे दिख रही थी, जबकि जहांगीर अपनी व्हील चेयर पर बैठा गुस्से से हाँफ रहा था। काजी की जरूरत नहीं है, इस लड़की की अकड़ खत्म करने का वक्त आ गया है। समीना बेगम, अगर चाहती हो कि तुम्हारे सारे पैसे हलाल हो जाए, तो आज से इनसे मुझे अपने तरीके से इंतकाम लेने दो। वो सफाकी से बोले तो समीना बेगम पहले हकलाई, मगर वो ये सौदा हर हाल में कर चुकी थी। अब वापसी नामुमकिन थी। मुझ पर रहम करें चची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दे। रबिया मुसलसल रो रही थी, मगर उसके लहजे में अब एक अजीब सी जिद और बगावत आ चुकी थी। बकवास बंद कर, ये इल्तजा मुझसे नहीं अपने आशिक से करनी थी ना। उस वक्त सेठ तुम्हें इज्जत से अपना रहा था, जो तुम्हें रास नहीं आई। अब भुगतो, अब वक्त गुजर चुका है, वही होगा जो तय कर चुका हूं मैं। जहांगीर की करख्त आवाज कमरे में गूंजी। रबिया ने अपने आंसू साफ किए और इंतहाई नफरत से जहांगीर को देखा। तो मुझे मार दो, मेरी जान ले लोगे, मगर मैं तुम जैसे शैतान और गलीज इंसान से कभी निकाह नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ नौशेरवा की और मरते दम तक उसकी रहूंगी। तुम मेरा जिस्म तो कैद कर सकते हो, मगर मेरी रूह, मेरी मोहब्बत पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। रबिया की इस ललकार ने जहांगीर की अना को बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। एक बेबस और लाचार लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर रो रही थी, उसे रद्द कर रही थी, और उसकी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तुमसे निकाह कौन कर रहा है लड़की? तुम इस काबिल नहीं हो। जहांगीर चाय का चेहरा गुस्से और दरिंदगी से भयानक हो गया। उसने एक गुंडे को इशारा किया। वो गुंडा एक शीशे की बोतल लेकर आगे बढ़ा, जिसमें एक खतरनाक और तेजाब बड़ा माया मौजूद था। बोतल का ढक्कन खुलते ही कमरे में तेजाब की एक तेज और दम घुटने वाली बू फैल गई। रबिया की आंखें खौफ से फैल गई। वो समझ गई कि जहांगीर क्या करने वाला है। अगर तो मेरी समझ नहीं आ सकती, तो मैं तुझे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे इस हुस्न और तेरी इस जवानी पर और तेरी इस आशिक के गुरूर पर आज मैं वो चेहरा तेरा बिगाड़ूंगा कि तू सारी जिंदगी
शीशे में खुद को देखने से भी डरेगी। तेरा वो एसपी, क्या कोई कुत्ता भी तेरे तरफ देखना पसंद नहीं करेगा? जहांगीर दरिंदगी से हंसता हुआ अपनी व्हील चेयर को रबिया की तरफ बढ़ाने लगा। चची समीना भी ये मंजर देखकर एक पल के लिए सहम गई, मगर लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उन्होंने रबिया को बचाने की कोई कोशिश न की। रबिया ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ तेजी से दुआएं मांगने लगे। वो अपनी मौत के लिए तैयार थी। उसने सोच लिया था कि वह तेजाब के इस दर्द को बर्दाश्त कर लेगी, मगर उस जालिम के आगे हार नहीं मानेगी। उसके दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, नौशेरवान। जहांगीर ने तेजाब की बोतल को ऊपर उठाया और उसका रुख रबिया के चेहरे की तरफ किया। रबिया ने जोर से अपनी आंखें मीच ली और आखिरी बार अपने रब को पुकारा। तभी एक जोरदार और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और फार्म हाउस का बाहरी दरवाजा किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कमरे में मौजूद सब लोग दहशतजदा होकर पलटे। दरवाजे के फ्रेम में एक इंतहाई तवील कामत और गजबनाक हेवला खड़ा था। नौशेरवा था। उसकी आंखों में क्यामत खेज गुस्सा और चेहरे पर मौत की सी वहशत तारी थी। उसके हाथ से उसकी सरकारी पिस्तौल थी और उसके पीछे दर्जनों मस्ताह पुलिस पोजीशन संभाले खड़े थे। जहांगीर के हाथ में पकड़ी तेजाब की बोतल अभी रबिया की तरफ झुकी ही थी कि नौशेरवा एक भूखे शेर की तरह आगे बढ़ा और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही न मिला। और इससे पहले तेजाब का एक कतरा भी रबिया के चेहरे पर गिरता, नौशेरवा ने एक फलक जगाव चीख मारी और अपनी पूरी ताकत से जहांगीर को की व्हील चेयर को एक जोरदार लात रसीद की। लात इतनी खौफनाक और ताकतवर थी कि जहांगीर व्हील चेयर समेत हवा में उछला और दूर जाकर जमीन पर इंतहाई बुरी तरह से गिरा। तेजाब की बोतल उसके हाथ से झटकर दूर जा गिरी और छनाके से टूट गई। तेजाब फर्श पर गिरा और वहां से धुआं उठने लगा। कुछ कतरे उस सफाक आदमी के चेहरे पर पड़े। जहांगीर दर्द से बिलबिला उठा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। चची समीना उसके हलक से एक भयानक चीख निकली और वो खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में मौजूद जहांगीर के तमाम गुंडों ने हथियार डाल दिए, क्योंकि पुलिस ने उन सबके सरों पर बंदूकें तान रखी थी। नौशेरवा की सांस धुकनी की तरह चल रही थी और उसने मुड़कर रबिया को देखा, जो आंखें बंद किए खौफ से कांप रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच गई है। नौशेरवा जल्दी से रबिया के पास पहुंचा। उसे तेजी से रबिया की रस्सियां खोली और उसे अपनी मजबूत बाजों के हिसार में ले लिया। रबिया ने आंखें खोली और अपने सामने अपनी मसीहा को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपना सर नौशेरवा के सीने पर रख दिया और बच्चों की तरह सिसकने लगी। नौशेरवा ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। मैं आ गया हूँ रबिया, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन सबको जिंदा जला दूंगा मैं, जिन्होंने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा है। नौशेरवा की आवाज में एक ऐसी गर्ज और तूफान था जिसने वहां मौजूद हर शख्स के दिल को दहला दिया। जहांगीर जमीन पर पड़ा फोन थूक रहा था और चची समीना हाथ छोड़कर माफी मांग रही थी, मगर नौशेरवा की आंखों में उनके लिए कोई रहम नहीं था। उसने आज फैसला कर लिया था कि वो उन दरिंदों को उनकी बर्दनाक अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। रबिया नौशेरवा के सीने से लगी अपने सारे दुख और खौफ भूल चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पर है और अब उसकी मोहब्बत को कोई उससे नहीं छीन सकता। नौशेरवा ने रबिया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके चेहरे पर आंसू और मिट्टियों की लकीर बनी हुई थी, जिन्हें नौशेरवा ने अपने अंगूठे से साफ किया। उसकी आंखों में रबिया के लिए इतनी गहरी और दर्दनाक मोहब्बत थी कि रबिया का दिल पिघलने लगा। तुमने मुझे कितना डरा दिया था रबिया। अगर मैं एक पल भी लेट हो जाता तो खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाता। नौशेरवा की आवाज भारी हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। एक सख्त के पुलिस ऑफिसर जो मुजरिमों की जान निकाल देता था, आज अपनी मोहब्बत की इस हालत पर अंदर से टूट गया था। रबिया ने अपने कांपते हाथों से नौशेरवा का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दे नौशेरवा, मैंने अपना वादा तोड़ा, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने फारिया को मारने की धमकी दी थी और मैं फारिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रबिया की सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नौशेरवा ने उसे मजीद करीब किया और उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। मुझे सब मालूम है रबिया, फारिया बिल्कुल महफूज है। वो अपार्टमेंट में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, मगर अब तुम्हें मजीद किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ये नौशेरवा अब तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। नौशेरवा ने उसे दिलासा दिया और फिर पलट कर उस गलीज इंसान की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा कीड़े की तरह रेंग रहा था। जहांगीर की टांगे पहले ही नकारा थी
اب نوشیروان کے لات نے اس کی پسلیاں بھی توڑ دی تھی اور منہ سے بھیانک چیخ نکل رہی تھی۔ وہ کراہتا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ نوشیروان نے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے پاس پہنچا اور اس کے گریبان کو سختی سے پکڑا اور اسے زمین سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ جہانگیر کے چہرے پر موت کا خوف واضح تھا۔ اس کی آنکھیں بٹی کی طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو نے اس لڑکی پر تیزاب پھینکنے کی جرت کی جو میری جان ہے۔ تو نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو موت کے لیے ترسے گا مگر موت تجھے نہیں آئے گی۔ نوشیروان دہاڑا۔ اس نے جہانگیر کے منہ پر ایک کے بعد ایک کئی تابڑ توڑ مکے برسائے۔ جہانگیر کا منہ خون سے بھر گیا اور اس کے دانت ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ کمرے میں موجود پولیس اہلکار بھی اپنے آفیسر کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر سہم گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نوشیروان کو روکے۔ چچی سمینا بیگم جو کہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی اب نوشیروان کے قدموں کی طرف رینگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ یہ سب اس جہانگیر کا کیا دھرا ہے۔ اس نے ہی مجھ سے یہ سب کروایا تھا۔ میں تو بے بس تھی۔ چچی نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ نوشیروان نے انتہائی حقارت سے چچی کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ بکواس بند کرو۔ تم جیسی عورت کو شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم خود شیطان کی بھی استاد ہو۔ تم نے چند کوڑوں کے لیے اپنی سگی بھتیجی کا سودا کر دیا۔ تمہیں تو جہنم کی آگ پہ قبول نہیں کرے گی۔ اس کو گناہ گار گرفتار کرو اور اسے سیدھا سینٹرل جیل کے اس سیل میں ڈالو جہاں خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ نوشیروان نے اپنے ماتحت آفیسران کو حکم دیا۔ پولیس کی 2 لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی اور انہوں نے چچی سمینا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف دھکیلا۔ چچی کی چیخیں اور منتیں بیکار تھیں۔ ان کا انجام ان کے گناہوں سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا تھا۔ جہانگیر کے گنڈوں کو بھی ہتھکڑیاں پہنا کر باہر گاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ کمرے میں اب صرف نوشیروان اور ربیہ رہ گئے تھے۔ ربیہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ نوشیروان اس کے پاس ہے اور اس نے اپنا کوٹ اتار کر ربیہ کے کندھوں پر ڈال دیا تاکہ اسے سردی اور خوف سے بچایا جا سکے۔ جاؤ ربیہ، اب یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ شیروان نے انتہائی نرمی سے کہا، ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ ربیہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ فارم ہاؤس کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور ایمبولینس موجود تھی۔ جہانگیر کو اسٹریچر پر ڈال کر پولیس ایمبولینس میں بھیجا جا رہا تھا۔ وہ بری طرح زخمی تھا اور اسپتال کی بجائے سیدھا جیل کے اسپتال لے جایا جا رہا تھا جہاں اس کا علاج بھی ایک قیدی کی طرح ہونا تھا۔ چچی سمینا بیگم پولیس وین میں بیٹھی دہاڑی مار مار کر رو رہی تھی۔ انہیں اپنی عزت اور دولت سب کچھ خاک میں ملتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نوشیروان نے ربیہ کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی تیزی سے اس منحوس جگہ سے دور ہونے لگی۔ ربیہ مسلسل کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ کے وہ تمام مناظر بار بار گھوم رہے تھے۔ جہانگیر کی درندگی، چچی کی مکاری اور پھر نوشیروان کا ایک نجات و ہند بن کر آنا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت طویل اور بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ نوشیروان نے مسلسل ربیہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ربیہ اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور اسے صدمے سے نکالنے کے لیے بہت وقت اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سٹرنگ وہیل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ربیہ کا سرد ہاتھ تھام لیا۔ ربیہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کچھ سہا ہے مگر اب سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ نوشیروان کے الفاظ نے ربیہ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ اس نے پلٹ کر نوشیروان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف سچائی اور محبت تھی۔ ربیہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے نوشیروان، آپ کے بغیر میری زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ آپ نے میری صرف جان نہیں بچائی بلکہ میرا یقین بھی بچا لیا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ربیہ کی آواز دھیمی مگر جذبات سے بھرپور تھی۔ نوشیروان کے چہرے پر ایک پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی منزل اب اس کے پاس تھی اور اپنی محبت کو پا چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے شہر کی طرف رواں دواں تھی جہاں فاریہ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلتے ہی فاریہ دیوانہ وار دوڑ کر ربیہ کے گلے لگ گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو کسی دکھ کے نہیں بلکہ اس خوفناک طوفان سے نکل آنے کے شکرانے کے آنسو تھے۔ نوشیروان دروازے کے پاس کھڑا، بازو سینے پر باندھے، ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائے
जज्बाती और खूबसूरत मंजर को दिख रहा था। उसकी जान अब मुकम्मल तौर पर सुकून में थी। कुछ देर बाद उसने गला खनकार कर उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। अगर बहनों का ये जज्बाती और उड़ाने वाला मिलन खत्म हो गया हो तो क्या अब मैं अपनी अमानत को हमेशा के लिए अपने नाम कर लूं? काजी साहब मेरा दिमाग खा रहे हैं और मेरा जब्त अब जवाब दे रहे हैं। शेरवा के चेहरे पर एक दिलकश और शरीर से मुस्कुराहट थी, जिसने रबिया के जर्द चेहरे पर हया की सुर्खी बखेर दी। रबिया ने शर्मा कर नजरें झुका ली। फारिया ने हंसते हुए रबिया के आंसू साफ किए और शोक लहजे में बोली, बिल्कुल नौशेरवा भाई, आपका हक तो सबसे पहले है। अब ये मेरी बहन आपके दर्द सर है, बर्दाश्त करने का हौसला आपको को दिखाना होगा। कुछ ही देर बाद लाउंज में काजी साहब ने खुतबा लिखा शुरू किया। रबिया अब सादा से लिबास में मलबूस थी। उसने वो मनहूस जोड़ा उतार दिया था। रबिया बिनते अब्दुल्ला, क्या आपको नौशेरवा वल्द जुल्फकार के साथ ये निकाह 50 लाख हक मेहर के अवज कबूल है? काजी साहब की आवाज पर लाउंज में गहरा सकूत छा गया। रबिया का दिल शिद्दत जज्बात से सीने की पसलियों से टकरा रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ एक नजर सामने बैठे नौशेरवा पर डाली। शेरवा की गहरी स्याह और सहर अंगेज आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रबिया के लिए मोहब्बत का एक बेकरार समंदर मौजूद था। उसकी नजरें जैसे रबिया से इल्तिजा कर रही थी कि मजीद कोई ताकीद न करे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। रबिया के कांपते लबों से अदा होने वाले इन 3 जादुई अल्फाज ने नौशेरवा की दुनिया मुकम्मल कर दी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। शेरवा ने भी पूरे वक़ार, तमन्नत और मोहब्बत के साथ अपनी कबूलियत का ऐलान किया। जब दुआ के लिए हाथ उठे तो रबिया के गालों पर शुक्र और खुशी के गर्म आंसू बह निकले। आज बलाखिर अपने प्यार को, अपनी मंजिल को पा चुकी थी। रात का पिछला पहर था और चांद की दूधिया और खनक रोशनी अपार्टमेंट की बड़ी सी बालकनी में बिखरी हुई थी। फारिया अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो चुकी थी। रबिया बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे शहर की खामोश रोशनियों को देख रही थी और रात की ठंडी हवा को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी कि अचानक 2 मजबूत बाजू ने उसे पीछे से अपने गर्म हिसार में ले लिया। शेरवा ने अपना चेहरा रबिया की गर्दन के पास झुकाया और उसकी जुल्फों की खुशबू को अपने अंदर उतारा। उसकी गर्म सांसों ने रबिया के वजूद में एक मीठी सी सनसनी दौड़ा दी। आज का दिन कितना तवील, भयानक और घुटन था रबिया। मुझे लगा था जैसे मैं जिंदगी की बाजी हार जाऊंगा, मगर देखो आखिरकार तुम मेरी हो गई, मेरी मुकम्मल मलकियत। शेरवा की बारी सहर अंगेज और रोमानवी आवाज ने रबिया के दिल की धड़कनें मजीद तेज कर दी। रबिया ने पलटकर नौशेरवा की आंखों में देखा। उन आंखों में इतनी शिद्दत थी कि रबिया को लगा वो पिघल जाएगी। मैं तो हमेशा आपकी थी नौशेरवा, मैंने तो कभी किसी और का सोचा भी नहीं था। बस हालात के जालिम जंजीरों ने मुझे जकड़ लिया था। मुझे डर था कि कहीं मेरा ये जुर्म मुझे आपसे हमेशा के लिए दूर ही न कर दे। मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना, मगर जुर्म इश्क ने हमें मिला दिया। शेरवा ने मुस्कुराकर अपने हाथ की उंगली रबिया के लबों पर फेरी। आज माजी की कोई बात हमारे दरमियान नहीं आएगी। और सुन लो, तुम्हारा ये जुर्म इश्क ही तो था जिसने मुझे एक पागल जुनूनी दीवाना बना दिया। अगर तुम मुझसे इश्क का जुर्म ना करती तो नशेरवा जैसा सख्तगीर और बेरहम इंसान कभी मोहब्बत के आगे घुटने न टेकता। तुमने मुझे जीना सिखाया रबिया, तुमने मुझे मोहब्बत का मतलब समझाया है और आपने मुझे हर खौफ से आजाद कर दिया। आप मेरे मुहाफिज हैं, मेरे मसीहा। रबिया ने अपना सर नौशेरवा के चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया, जहां वो उसकी दिल की तेज धड़कनें सुन सकती थी। नौशेरवा ने से बाहों में मजीद कसते उसकी पेशानी पर अपने गर्म लब रख दिए। सीने में सिर्फ तुम्हारा दिल धड़कता है रबिया। तुम मेरी वो अजीम फतह हो जिसे पाने के लिए मैंने मौत और मुकद्दर से भी बगावत कर ली थी। दुनिया की कोई ताकत, कोई साजिश तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। तुम मेरा वो जुर्म हो जिसकी सजा मैं उम्र भर काटना चाहता हूँ। रबी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। चांदनी रात की उस खूबसूरत और पुरसकून खामोशी में उन दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उनकी मोहब्बत का सफर जो दुख, कुर्बानी, आंसू और जिल्लत की आग से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत, सुकून, भरोसे और वफा के एक ऐसे समंदर में ढल चुका था जिसका कोई किनारा नहीं था।